Good morning, everyone. Now, last time we did up to synthesis of proteins and vitamins over here, nitrogen fixation and photosynthesis. Now, we shall do further. We shall do further other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and form? And from where do they derive nutrition? Now, those plants which do not contain chlorophyll, how do they survive? That we will study. Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Now, heterotrophic mode of nutrition, underline what is it? It is the mode of nutrition in which the plants depend on other animals or plants to derive their nutrition, right? That is heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5. Now, figure 1.5 is Cascuta. Can you see this yellow colored plant which is covering this big tree? It is Cascuta. What is Cascuta? Cascuta is a yellow colored plant. It's a kind of a creeper. It covers the entire tree or plant which comes in contact with it, and it produces such roots. See, ऐसा वो ट्री होता है ना दूसरा, उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे चढ़ जाता है और उसके अंदर से ऐसे रूट्स बाहर निकलते हैं जो डायरेक्ट उसके जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो मैंने आपको समझाया था उसके अंदर जाता है, और इसका जो फूड होता है वो डायरेक्टली ये खुद खा लेता है. So it is a parasite plant. What is it? It is a parasite plant. It is parasitic or heterotrophic mode of nutrition बोलते हैं उसको. यानी heterotrophic यानी दूसरे प्लांट पे या दूसरे एनिमल पे डिपेंड करना अपने फूड के लिए, राइट? जैसे हमने पहला वाला कौन सा मोड किया था? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, right? They don't depend on anyone. And heterotrophic is something in which the plants or animals depend on other plants or animals for their food. So here we look at Cascuta. Cascuta is one such plant which covers the other plants and take away their nutrition, right? So that is heterotrophic mode of nutrition. Now, do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascuta, right? This is a plant called Cascuta amarbel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called a host. Underline करो इसको. The plant जिसके ऊपर वो grow करता है या जिसके ऊपर वो climb करता है, that is called a host. Since it deprives the host of valuable nutrients, उसका डायरेक्ट फूड ये खा लेता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो प्लांट मर जाएगा. Cascuta is called the parasite. What is it called? A parasite. Because parasite वो होता है जो आपके बॉडी में घुस के आपका फूड खा लेता है एंड आपको डिवाइड कर देता है, आप भूखे रह जाते हो, राइट? So that is called a parasite. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. We are not complete parasites, right? We depend on other animals for food, other animals or plants for food, but we completely don't use the parasitic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition है हमारा, बट हेटेरोट्रॉपिक में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप पैरासाइटिक है, तो हम कंप्लीटली पैरासाइट्स नहीं हैं, राइट? सो पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. Yes, they are parasites. Mosquitoes are insects actually. Bedbugs are insects. Lice are also insect. Lice मतलब क्या मालूम है ना? जू. Leeches are a kind of this kind of animal होता है जो जिसको suckers होते हैं, और वो cows and buffaloes के ऊपर चिपक जाता है और फिर उनका खून चूसता है, ऐसे उनका शक्कर होता है, यहाँ से वो चिपक जाता है, and it keeps on absorbing the food of these animals. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. It is not amazing.
इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. ये प्लांट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं या किसी और कलर के भी होते हैं, बट वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट. यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, देखो, पिक्चर प्लांट शोइंग द लीड एंड पिक्चर. उसको ऐसा ये एक हॉलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ढक्कन होता है. सी दिस इज शोन ओवर हियर एज अ एनलार्ज्ड वन. ऐसा ये दिस इज द पिक्चर, इट इज कॉल्ड अ पिक्चर एंड दिस इज द लीड. अब क्या होता है, इंसेक्ट्स उसके मुंह पे यहाँ पर अगर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका कलर बहुत ब्यूटीफुल एंड ऐसे होता है, तो इंसेक्ट्स वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं. इंसेक्ट्स जैसे ही यहाँ पर बैठते हैं, क्या होता है, बिकॉज ऑफ द स्टिकी हेयर एंड सॉल्यूशन, देयर इज अ स्टिकी लिक्विड इनसाइड इट्स माउथ. व्हाट हैपेंस, इंसेक्ट्स स्लाइड डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं. और नीचे गिरने के बाद क्या होता है कि वो ऊपर आ ही नहीं पाते हैं, बिकॉज वो इतना अंदर से स्टिकी होता है कि दे कैन नॉट क्लाइंब अप. एंड आफ्टर दैट इंसेक्ट गोज इनसाइड, दिस लीड शट्स अप, ये लीड बंद हो जाता है, उसका ढक्कन बंद हो जाता है और फिर वो इंसेक्ट को अंदर ही डिजोल्व करके उसमें से न्यूट्रिशन लेता है. दिस प्लांट इज कॉल्ड पिक्चर प्लांट. इट इज अ पैरासाइटिक प्लांट, राइट. ये अपना फूड खुद नहीं बनाता है, ऐसे इंसेक्ट को ट्रैप करके वो उनमें से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है. Look at the plant in figure 1.6. The pitcher-like or jug-like structure is the modified part of leaf. The apex of leaf forms a lid, which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are hair. There are hair which entangle the entrapped insect. अंदर hair होते हैं इसके अंदर, जिससे वो वह इंसेक्ट को पूरी तरह से घेर लेता है, ट्रैप कर लेता है. द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप. द इंसेक्ट इज किल्ड बाय द juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. इसको अंडरलाइन करो यहाँ से. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इट्स एग्जाम्पल इज पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट उसको बोलते हैं. It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. Bujo is confused. If the pitcher plant is seen and carries out photosynthesis, is green and is carries out photosynthesis, then they doesn't. Then why does it feed on insects? पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर, ये हमने देखा, राइट. वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है, इसीलिए इंसेक्ट में से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है. नाउ फर्दर सैप्रोट्रॉप्स. व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स दैट वी विल स्टडी. फर्स्ट हमने स्टडी किया ऑटोट्रॉप, देन हमने हेटेरोट्रॉप स्टडी किया. हेटेरोट्रॉप में दो टाइप्स हमने स्टडी किया. वन वाज पैरासाइट एंड वन वाज दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट. और अभी हम स्टडी कर रहे हैं सैप्रोफाइट्स. Saprophytes, you might have seen packets of mushrooms sold in a vegetable market. मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम एक टाइप का फंगस है. आजकल आपके पिज्ज़ा विज़ा में बहुत मशरूम पड़ता है, राइट. बटन मशरूम्स और अलग अलग टाइप के मशरूम्स यूज़ करते हैं. मशरूम क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस विच ग्रोज ऑन सॉइल. जहाँ पे सड़ती हुई चीज़ें होती है वहाँ पे मशरूम्स उगते हैं, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट. और खासकर बारिश के सीज़न में जब सब मिट्टी वगैरह सब गीला हो जाता है, प्लांट्स के जो बार्क्स होते हैं, ट्रीज के बार्क्स बड़े बड़े जो होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, तो उधर मशरूम्स उगते हैं. डैम्प सॉइल में, डैम्प जगह पे मशरूम्स उगते हैं. दैट इज बिकॉज दे आर फंगस, अ काइंड ऑफ फंगस. सो लेट अस रीड. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. Right? They need to survive. What type of nutrition they get and from where, how do they survive. अगर वो भी एक टाइप के प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं, राइट. सो वी शुड स्टडी देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब लेट अस रीड. पैकेट ऑफ मशरूम्स, ये मैं मशरूम्स पैकेट दिखाया है. अ मशरूम ग्रोइंग इन डीकेड मटीरियल, राइट. ये वाला मशरूम जो है वो क्या दिखा रहा है,
डीकेड मटेरियल, सड़ता हुआ कुछ वुडन पोस्ट लॉग है, उसके ऊपर वो मशरूम उगा हुआ है। नाउ आगे बढ़ते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अगर उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो लोग कैसे फूड बनाते हैं? let us study. Take a piece of bread and moisten it with water. ब्रेड गीला करके आप जब कभी बाहर रखते हो, ब्रेड भी होता है या रोटी भी होती है, अभी ये इसका सीज़न है, बारिश का सीज़न है, अगर आप उसको बाहर छोड़ दोगे तो क्या होगा? उसके ऊपर ये जम जाती है, फंगस जम जाती है, राइट? सो दैट फंगस इज नथिंग बट अ सैप्रोफाइट, राइट? वैसे ही ये मशरूम्स जो है वो फंगस ही है एक टाइप का. इट इज ऑल्सो हैविंग द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ लेट अस रीड फर्दर. लीव इट इन a moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observations in the notebook. You will see cotton like threads spread on the piece of bread. Cotton like thread उसके ऊपर spread होता है.